doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I'm Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं और प्लांट फिजियोलॉजी में हमने सेलुलर रेस्पिरेशन को ओवर किया और हमने हर टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी की हमने एंड अलोंग विद द टॉपिक जो प्रीवियस नीट और एम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने टॉपिक के साथ ही इसको अटेम्प्ट किया है और देखा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी जो नॉलेज का लेवल है वो कहाँ पर है. Okay, even I told you many times कि only knowledge is not important. What I am telling you, only knowledge is not important. केवल knowledge का होना ही important नहीं है. Main thing is that how you attempt the paper. आप पेपर को कैसे attempt करते हैं. Your positive response towards the question paper. Clear? And how you solve your paper. Clear? जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, then what is going in your mind? That's important. Okay, how you attempt, what's the positive response, what's the response towards the question, and main thing, your command on the topic. Okay, the few of you can call it the accessory parameters are also required for like your selection. Clear? For making your confirmation of your selection. Okay, selection is not only depend on your knowledge but also it requires your positive response, your positive approach, your presence of mind and command on the topic. Okay, so केवल topic पे command लेने से कुछ नहीं होगा. You should have a presence, you should have a good presence of mind. ठीक है, अपने present mind को present रखिए. जहाँ पे भी आप study कर रहे हो, whatever you are doing, your mind should be present. Okay, so जैसे कि हम cellular respiration तो हमने over किया, अब हम चलेंगे हमारे next chapter की तरफ, the photosynthesis in the plant. Okay, photosynthesis is a plant, you can call it like जैसे कि हमने respiration पढ़ा, तो respiration में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपोनेंट डिग्रेड होते हैं एंड दे प्रोवाइड यू द एनर्जी. फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट प्रोसेस है. क्लियर? जो कंपोनेंट जो डिग्रेड हो रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस में वही ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रिपेयर होते हैं. अगर आप उनकी बायोकेमिकल रिएक्शन को देखेंगे बिल्कुल अपोजिट है. क्लियर? रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट होते हैं फोटोसिंथेसिस में वही प्रोडक्ट होते हैं. क्लियर? रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस में वही सबस्ट्रेट होते हैं. क्लियर? सो ये बेसिकली रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस they make an ecological, they are basically necessary because they frame ecological link. लेकिन इकोलॉजिकल लिंक है इन दोनों के बीच में. क्लियर? तो जितना रेस्पिरेशन रिक्वायर्ड है उतना फोटोसिंथेसिस भी रिक्वायर्ड है. जितना फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड है उसी को चलाने के लिए रेस्पिरेशन भी रिक्वायर्ड है. क्लियर? Like all animals including the human being and depends on the plant for the food. We know very well like we are not capable to synthesize their own food. We have to be dependent on others for making a food. That's why we are called the heterotrophic. Clear? And the plants are called the autotrophics. So clear? In fact, we have to make rather synthesis the food they need and all organism dependent on them for their needs. The green plants make or rather synthesize the food, then they need through the photosynthesis and are called the and therefore called the autotrophs. देखिए, and we know very well the plants are called the autotrophs. It means they can synthesize their own food in the presence of the sunlight. Clear? In the presence of sunlight. That's why this process is called the photosynthesis. Something is going to be synthesized in the presence of the sunlight. That's why it called the photosynthesis. And those organisms have a capability to synthesize the food in the presence of sunlight called the autotrophs. Clear? The green plant carry out the photosynthesis. It is a physiochemical process. Why it's called the physiochemical process? Because the chemical process occur in the presence of the sunlight. So in the presence light, it means in the presence of sunlight, when the plant capture the sunlight, capture the UV light, it called the physical process. And because to the capturing of sunlight, when chemical process take place, this is called the chemical process. So that's why including of both physiochemical process, it's it's a part of it's a photosynthesis process. That's why photosynthesis is called the physicochemical process. Clear? The use of energy from a sunlight by plant doing a synthesis is basis of life on the earth. Like plant जो अपना food बनाते हैं in the presence of the sunlight and that food's taken up by us. Okay, जो भी animals हैं, जो भी autotrophic, जो भी heterotrophic animals हैं, this is taken up by then us. Like as we are also heterotrophic.
clear? So that's it make a basis of a life, because अगर आपको food नहीं मिलेगा then you cannot survive. So that's why it make a basis of your life. Okay. Photosynthesis is important due to the two reasons. What are the importance? What are the reasons? It is a primary source of all food on the earth. Clear? That we know very well that we are dependent on the plants for the food. That's why it is called the primary source of all food on the earth. Like your carbohydrate, your protein, your lipid, okay, whatever. Okay, that's whatever. Okay, it is a made up by it is a like you can like it is a made up it is a made up by a plants. Clear? Like for an example, like basically the photosynthesis process, glucose is formed. This is like it's a primary food component. What is your primary food component? Is a glucose. Now the further like your synthesizing, like the formation of protein, the formation of lipid, and many kind of the organic component, they basically synthesize from this primary component. Clear? देखिए प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं दे प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इट मीन द ग्लूकोज इज योर प्राइमरी फूड प्रोडक्ट. Now the glucose, now the other food component like your lipid, your protein, and others vitamins, everything is like the further synthesized by from this primary product. Clear? It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants. देखिए जब हम प्रोसेस, मैंने बोला था कि जो रेस्पिरेशन में जो सबस्ट्रेट होता है वही उसका प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट में क्या निकाल रहे हैं. देखिए ग्लूकोज इज कॉल्ड द मेन प्रोडक्ट एंड द ऑक्सीजन इज कॉल्ड द बाय प्रोडक्ट. क्लियर? ऑक्सीजन इज कॉल्ड द बाय प्रोडक्ट. So that byproduct is released into the atmosphere by the plant. So and that oxygen is taken up by us for the respiration purpose. ओके. सो आई थिंक आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आप समझ पा रहे हो. ठीक है. जैसे कि आपको कंफ्यूज हो रहा होगा कि ग्लूकोज से कैसे फर्दर और आज सारे प्रोटीन कंपोनेंट सिंथेसाइज होते हैं. ओके, सिंथेसाइज होते हैं. आई टोल्ड यू लेटर, स्लोली एंड स्लोली हर चीज को आप कवर करेंगे. प्रोटीन कैसे बनता है, लिपिड कैसे बनता है, ये सब चीजें धीरे धीरे आपको कवर हो जाएंगी. क्लियर? नाउ ओके, एक एनिमेशन है आपके सामने जो सारे प्रोसेस को समराइज करेगा. देखिए आपके सामने एक प्लांट है. ठीक है. दैट प्लांट रिसीव द सनलाइट. The plant receive the sunlight. When they receive the sunlight, then what happened? The photosynthesis take place, and that is a main important reaction reaction is take place in a photosynthesis process. It means when the this carbon dioxide and the water molecule get fixed, and they produce this organic component and release oxygen as a byproduct. Clear? Then further that oxygen is taken up by us, like taken up as a human in the respiration process, and we know very well then what happen of oxygen further in our body. Clear? Now sequentially when you take a oxygen, sequentially we release this carbon dioxide. Okay, so that is a respiration process, and that carbon dioxide, it become a part of the photosynthesis process. So oxygen which is released by the photosynthesis process taken up by human, and further in that sequential process the CO2 which is released in that process is taken up by a plant for the photosynthesis process. So this is a cycle. Exactly it occur in a respiration और photosynthesis basically cycle में होते हैं. ये किस साइकिल में होते हैं, और इनके लिए इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल लिंक. तो दैट्स इकोलॉजिकल लिंक. अगर ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगी देन CO2 रिलीज नहीं होगी. अगर CO2 नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी. तो दैट्स इट अकर इन अ साइकिल. ओके, ऑक्सीजन को यूज करना, CO2 को रिलीज करना, फिर CO2 को फोटोसिंथेसिस में यूज करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना. सो दैट्स अकर इन अ साइकिल. क्लियर? नाउ एक्सपेरिमेंटल स्टडी. देखिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, वी नो वेरी वेल कि दिस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कुछ पिगमेंट होते हैं जो बेसिकली सनलाइट को कैप्चर करते हैं. क्लियर? जैसे कि आप सैटेलाइट्स होते हैं. सैटेलाइट क्या करते हैं, जो अर्थ से जो भी आपकी रेज आती है उनको कैप्चर करते हैं. तो वैसे ही प्लांट सेल्स के अंदर जो आपके पिगमेंट्स होते हैं लाइक क्लोरोफिल है या फिर जो अदर पिगमेंट्स होते हैं, ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं. सो व्हाट आर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, लाइक द क्लोरोफिल, लाइट, CO2 are the required for the photosynthesis to occur. तो इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि
क्लोरोफिल जरूरी है क्या, रिक्वायर है क्या नहीं, क्योंकि सिर्फ कहने से ये चीज सॉल्व नहीं होगी। तो इसको बेसिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया कि क्लोरोफिल रियली में रिक्वायर्ड है, CO2 रिक्वायर्ड है या नहीं, लाइट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो इसको बेसिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ किया गया था, प्रिट्सले, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। एंड व्हाट ही डिड, जोसेफ प्रिस्ले, जिनका जो फुल नेम था, he performed a series of the experiment, okay, that revealed the essential role of the air in the growth of the green plants. देखिए what happened exactly in the photosynthesis process. As I told you, the glucose it become a main product of this process, and the oxygen as a release as a byproduct. Oxygen release as a byproduct. Clear? So ऑक्सीजन जो एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, क्लियर, इट बिकम ए एसेंशियल, you can call it the essential component in the growth, essential component for the human being, even for all a green plant also, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन में वो यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? सो जोसेफ प्रिट्सले ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया ये चेक करने के लिए कि जो एयर का एग्जैक्टली रोल क्या है, एयर का एग्जैक्टली रोल क्या है ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए अगर रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट गैस कौन सी, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट एयर कौन सी, CO2। सो एग्जैक्टली ही परफॉर्म द रोल ऑफ द एयर इन द ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट। सो एग्जैक्टली उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, he observed that a candle burning in a closed space, a bell jar, and it soon get extinguished। देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ये एक डायग्राम समझा देता हूँ, क्योंकि मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आपको बोर लगेगा। मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए ये एग्जैक्टली डायग्राम मैंने NCERT से लिया है। तो एग्जैक्टली व्हाट हैपन इन दिस एक्सपेरिमेंट, देखिए प्रिट्सले ने क्या किया, देखिए प्रिट्सले ने क्या किया, एक ट्रांसपेरेंट जार लिया, क्लियर, ट्रांसपेरेंट जार लिया। उस ट्रांसपेरेंट जार में उसने दो चीजें रखी, एक तो कैंडल, ओके, कैंडल, बर्निंग कैंडल, और एक माउस, क्लियर। अब होगा क्या, आपने इसको क्लोज कर दिया। अब आपने जब क्लोज कर दिया तो ऑक्सीजन का तो जो एक्सचेंज था वो तो रुक गया, ऑक्सीजन का एक्सचेंज तो होगा नहीं अब, क्योंकि आपने क्लोज कर दिया पूरी तरीके से। अब वी नो लाइक जब कोई बर्न होता है तो लाइक बर्निंग में निकलता है, CO2 निकलती है। तो जब कैंडल बर्न होगी तो CO2 रिलीज करेगी। अब यहाँ पे माउस है, भैया माउस भी रेस्पिरेशन करेगा तो वो भी CO2 रिलीज करेगा। तो इट मीन्स इस पूरे जार में CO2 का अमाउंट बढ़ने लगता है, क्लियर। इस पूरे जार में CO2 का अमाउंट बढ़ने लगता है, जिससे उस जार में जो एयर की क्वालिटी होती है इट बिकम डिस्टर्ब। अब उसकी पूरे जार में एयर की क्वालिटी जब डिस्टर्ब हो जाती है, एयर की क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, आफ्टर सम टाइम mouse cannot survive, okay, and like you candle it also, like जो आपकी जो सॉरी जो कैंडल थी, अब लाइक देखिए हमें पता है कि जब जो बेसिकली जो कैंडल या जो जलती है ऑलवेज दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन अब ऑक्सीजन तो नहीं, क्योंकि उस जार में CO2 का लेवल बढ़ गया, क्लियर हो गया। सो व्हाट हैपन, माउस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एंड जो कैंडल जो बर्निंग कंडीशन में थी इट बिकम फ्लो ऑफ, क्लियर, वो बुझ जाती है। अब उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक मिंट का प्लांट प्लेस किया। देखिए उन्होंने एक मिंट का प्लांट वहां पे प्लेस कर दिया। अब देखिए मिंट का प्लांट आपने प्लेस कर दिया और उसको हमने ट्रांसपेरेंट जार से उसको कवर किया था। तो ट्रांसपेरेंट जार से कवर किया तो सनलाइट को कैप्चर करेगा प्लांट। अब जब सनलाइट को कैप्चर करेगा प्लांट, CO2 तो ऑलरेडी उसके अंदर है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में और क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट चाहिए, जो आपको ट्रांसपेरेंट जार है सनलाइट तो मिल ही जाएगी, क्लियर। और इस पूरे प्रोसेस में ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में CO2 तो रिलीज हो ही रही है, क्लियर। अब और क्या चाहिए इसमें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, CO2 सनलाइट है, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे प्लांट्स में, उन्होंने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो ऑटोमेटिकली उस जार में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ने लग गई और एयर की क्वालिटी इंक्रीज हो गई। और जैसे ही एयर की क्वालिटी इंक्रीज हुई, देन माउस एंड जो कैंडल है, ठीक है, अब वो दोनों अपने सिचुएशन में मेंटेन रहते हैं। ऐसा नहीं क्या है, अब कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये एक्सपेरिमेंट अलग है
और ये और COD एक्सपेरिमेंट अलग है। ऐसा नहीं हुआ कि माउस मर गया फिर आपने प्लांट लगा दिया तो माउस दोबारा जिंदा हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से परफॉर्म किया, बट नाउ at this time they perform the experiment in the presence of the mint plant. ओके, तो क्लियर हो गया पूरा प्रोसीजर। सॉरी, सो सेम थिंग I just written over here, ठीक है, कि similarly a mouse would soon suffocated in the closed space. So he concluded that the burning candle or animal that breathed the air both somehow damaged the air. Clear? But when he placed a mint plant in the same bell jar, he found that mouse stayed alive and the candle continued to burn. Clear? Priestley then hypothesis that follows the plant restore the air whatever breathing animals and burning candle remove. ठीक है, ये इनका एक्सपेरिमेंट था कि जो प्लांट्स ने जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से प्रोसेस किया तो उसने एयर की क्वालिटी को मेंटेन किया और जिसकी वजह से कैंडल जो थी उसने बर्न रही, कंटिन्यूसली बर्न रही और माउस भी सरवाइव कर पाया। क्लियर? नाउ देखिए हर एक साइंटिस्ट ने अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन उन्होंने रखा था कि हर एक पर्टिकुलर पैरामीटर की एसेंशियल रोल को उन्होंने वहाँ पे पुट किया था। जैसे कि प्रिट्सले ने यहाँ इंपॉर्टेंट रोल किया था। प्रिट्सले ने बेसिकली वर्क किया था कि किसी एक गैस का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है प्रोसेस में, लाइक रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में गैसेस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे अब जो नए साइंटिस्ट थे, ओके, जेन इगनहाउस, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इन्होंने बेसिकली प्रिट्सले के ही एक्सपेरिमेंट को यूज किया। क्लियर? जहाँ पे वो प्रिट्सले बेसिकली परफॉर्म कर चुके थे कि फोटोसिंथेसिस में CO2 का इंपॉर्टेंट रोल है और इवन रेस्पिरेशन में भी O2 का इंपॉर्टेंट रोल है। बट अब जो जेन इगनहाउस ने ये शो किया कि सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेस एंड देन समहाउ प्यूरिफाई द एयर फॉलोड बाय बर्निंग कैंडल एंड ब्रीथिंग द एनिमल्स। तो देखिए उन्होंने देखिए इगनहाउस ने उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, बट उन्होंने ये इस चीज को प्रूव किया कि सनलाइट भी उतनी जरूरी है जितनी कि CO2 और O2 का रोल है। तो देखिए हर साइंटिस्ट ने अलग अलग पैरामीटर को लेके काम किया। जेन इगनहाउस ने सनलाइट को लेके काम किया, प्रिट्सले ने बेसिकली ऑक्सीजन और CO2 के इंपॉर्टेंट रोल को प्ले किया। ठीक है, क्लियर हो गया? Eganhaus in an elegant experiment with an aquatic plant showed that the bright sunlight, small bubbles were formed around the green plants while the dark they did not. देखिए उन्होंने एक्चुअली क्या किया, मैं एक बार आपको दोबारा से क्लियर करता हूँ। जेन इगनहाउस ने प्रिट्सले के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, बट उसने सनलाइट के इंपॉर्टेंट रोल को वहां पे बताया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को दो कंडीशन में परफॉर्म किया, एक किया सनलाइट की प्रेजेंस में और दूसरा किया सनलाइट की एब्सेंस में। क्लियर? और जब उन्होंने यहाँ पे यूज किया एक्वेटिक प्लांट, मतलब जो प्लांट आपके वाटर में कंटिन्यूसली रहते हैं, उन प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया। तो एक बार उन्होंने सनलाइट दी और एक बार उन्होंने डार्क कंडीशन में इसको परफॉर्म किया। व्हेन ही प्रोवाइड द सनलाइट, तो सनलाइट जब उन्होंने प्रोवाइड की तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि प्लांट्स में नीचे की तरफ, प्लांट्स में जो इस वाटर में है वो वहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, स्मॉल बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, अराउंड द ग्रीन प्लांट्स। और उन्होंने और वही एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने डार्क लाइट पर, डार्क कंडीशन में परफॉर्म किया, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। डिड यू गेट माय पॉइंट? जब उन्होंने लाइट की प्रेजेंस में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है सराउंड द ग्रीन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ बबल, बट इन द डार्क ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया कि सनलाइट भी उतनी जरूरी है जितनी कि अदर गैसेस जो थी CO2 और O2 जितनी है उतनी भी सनलाइट की प्रेजेंस भी जरूरी है। क्लियर? लेटर उन्होंने ये आइडेंटिफाइड कि जो बबल्स क्रिएट हो रहे थे वो ऑक्सीजन के बबल्स से। सो ही शोड दैट ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि ग्रीन प्लांट ही उस सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं, और जब ग्रीन प्लांट सनलाइट को कैप्चर करेंगे देन द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, एंड व्हेन फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्ट थे, ओके, जूलियस वॉन सैक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। देखिए हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल था।
क्लियर। अगर एमसीक्यू इनसे डेवलप भी होता है तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से डेवलप हो सकता है, जैसे कि जॉन प्रिट्सले ने किस पर्टिकुलर पैरामीटर पे काम किया था, ठीक है, इगन हाउस ने किस पर्टिकुलर पैरामीटर को किस पर्टिकुलर पैरामीटर की इंपॉर्टेंस को समझाया था। सेम जैसे कि जूलियस वॉन्सेक, इन्होंने क्या प्रूफ किया कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये प्रोवाइडेड द एविडेंस for the production of glucose when plants grow, glucose is usually stored as a starch। हमें पता है कि जब जनरली जो प्लांट अपना फूड का जो फॉर्मेशन करते हैं, प्लांट्स अपने फूड का जो फॉर्मेशन करते हैं, ओके, फूड का फॉर्मेशन जो करते हैं वो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज। क्लियर हो गया। एंड ये भी हमें पता है कि फर्दर उस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है, जैसे कि एनिमल्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं और प्लांट स्टार्च के फॉर्म में इसको स्टोर कर लिया जाता है। His later studies also showed that the green substances in the plant, chlorophyll, जिसे हम आज क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, is located in the special body, जो क्लोरोप्लास्ट होती है विद इन अ प्लांट सेल। उन्होंने ये भी बताया कि जो हम कहते हैं कि जैसे कि ईगन हाउस ने बताया था कि केवल ग्रीन प्लांट ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उसमें जो प्लांट में जो ग्रीन सब्सटेंसेस होता है वो एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गन्स में होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लियर। He found that the green part in the plant is where glucose is made and the glucose is usually stored as a starch। उन्होंने ये बताया कि ग्रीन प्लांट में, जहाँ पे प्लांट में ग्रीन पार्ट होता है वहाँ पे ग्लूकोज बनता है एंड फर्दर उस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जूलियस वॉन्सेक ने किस पर्टिकुलर पैरामीटर पर फोकस किया, उन्होंने बताया उसके क्लोरोफिल के रिलेटेड इश्यूज पे, क्लोरोफिल के ऊपर, एंड जो उन्होंने बताया कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड बाय द टी.डब्ल्यू. एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आए हैं। ओके, अब वो कौन सा क्वेश्चन जनरली आता है वो आपको बताता हूँ। नाउ एग्जैक्टली उन्होंने क्या परफॉर्म किया, बेसिकली उन्होंने एक तरह का एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाया। सेटअप आपके सामने है, मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने बेसिकली एक प्रिज्म यूज किया, ठीक है, जैसे देखिए दिख रहा है आपको, ये उन्होंने प्रिज्म को यूज किया और जब उन्होंने सनलाइट को इस प्रिज्म से पास किया तो हमें पता है कि प्रिज्म की क्वालिटी क्या होती है। प्रिज्म जब वो मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेती है देन प्रिज्म से वो मोनोक्रोमेटिक लाइट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, जैसे कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जब उसे प्रिज्म से पास करते हैं जैन वो डिफरेंट डिफरेंट रेज में उसको कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि एक प्रिज्म के अंदर एक विजिबल लाइट में अगर आप देखें तो 7 कलर्स होते हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वो 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं जैसे ही वो प्रिज्म से पास होते हैं। अब वो जो लाइट जो एज ए आउटपुट साइड, यहाँ पे आप देखेंगे जब उन्होंने लाइट को प्रिज्म से पास किया, जब यहाँ पे डिफरेंट कलर की रेज आपको यहाँ मिली, ठीक है, एज ए आउटपुट साइड, एट ए डाउनस्ट्रीम साइड। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे कि विप जो हमें वर्ड पता है कि लाइक उसमें वॉलेट, ओके, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेडिश, पर्पल, हर तरह की कलर की लाइन आपको यहाँ पे मिलती है। क्लियर, जैसे इसको प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करते हैं। एग्जैक्टली अब उन्होंने लाइट का क्या किया, जो लाइट प्रिज्म से निकली थी, मतलब जो आपने मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रिज्म से पास किया, व्हेन इट डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर्स, तो उस कलर को उन्होंने, उस कलर जो डिफरेंट डिफरेंट, अब उन्होंने 7 कलर मिले, अब उन्होंने उस कलर, हर एक कलर की लाइट को, ओके, एक सस्पेंशन में उन्होंने पास किया। अब वो सस्पेंशन किसका था, वो सस्पेंशन था इनका। सस्पेंशन में क्या था, उन्होंने क्या किया, उस एल्गी, एक एल्गी यूज किया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे उन्होंने एक एल्गी यूज की, क्लेडोफोरा, और उसको एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रख दिया, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन लिया और उसमें बेसिकली क्लेडोफोरा एल्गी को उन्होंने पुट किया। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखेंगे ये बेसिकली है आपकी ये एरोबिक बैक्टीरिया है जो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से डॉटेड किया है, और ये है आपकी क्लेडोफोरा एल्गी। अब देखिए जो भी दिख रहा है उस पर देखिए, अब वो जब लाइट, जब वो जो लाइट जो आपके जो स्प्लिटेड लाइट जो 7 कलर्स में स्प्लिटेड हो गई थी, जब हर एक एक लाइट को जब उन्होंने सस्पेंशन से पास किया तो क्या होगा,
अब जैसे क्लोरोफोरा तो एल्गी है, तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी। अब जब फोटोसिंथेसिस करेगी तो फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज करेगी, और जब ऑक्सीजन रिलीज करेगी तो वो ऑक्सीजन किसको मिलेगी, वो बैक्टीरिया को मिलेगी, और जब वो बैक्टीरिया को मिलेगी तो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। समझ में आ गया? सो इट मीन्स एक सस्पेंशन में बैक्टीरिया ग्रो करेगा। समझ में आ गया? देखिए, लेकिन उन्होंने बाद में ये आइडेंटिफाई किया कि जब ब्लू और रेड कलर, देखिए मैंने यहाँ पे अलग से नोटिफाइड भी किया हुआ है, ब्लू और रेड कलर को जब आप स्पेसिफिकली पास करते हो तो सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ क्यों होगी? क्योंकि उस लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, और जब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रेट होगी तो उतने ही अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज होगी, एंड दैट अमाउंट विल इज टेकन अप बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, एंड साइमल्टेनियसली उतने ही एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। सो एंड उन्होंने देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया को इसलिए डाला गया था कि जो क्लेडोफोरा एल्गी की जो की फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑक्सीजन निकलती है वो उसको यूज कर सके। सो बेसिकली ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ द ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ स्प्लिट स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम स्प्लिट हो गया था तो उन्होंने दैट सिंथेसिस रेट टेक प्लेस मेनली इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्लू एंड रेड लाइट। क्लियर? Sorry. If first action spectrum photosynthesis was this described, it resemble roughly the spectrum absorption spectra of the chlorophyll A and chlorophyll B। ये जो आपकी ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये भी हम थोड़े ये लाइन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जहाँ पे आपको मैं पिगमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो उनका स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ओके, एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो ये लाइन मैं वहाँ पे कवर करूंगा, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आई होप सो कि ये जो TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था ये क्लियर हो गया होगा आपको। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि TW एंगलमैन में किस एल्गी पे काम किया। सो योर आंसर इज क्लेडोफोरा। ओके, सो हम चलते हैं दोबारा से फोटोसिंथेसिस के इंट्रोडक्शन पे। देखिए फोटोसिंथेसिस में अभी तक हमने क्या देखा कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है। एक तरह की फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। बिकॉज फिजिकल क्यों? बिकॉज वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं। केमिकल क्यों? बिकॉज केमिकल रिएक्शन चलती है सेल में। क्लियर हो गया? सो और फिर उसको प्रूफ करने के लिए जैसे कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन कंपोनेंट क्या है, ओके, दैट प्लांट शुड हैव अ क्लोरोफिल, CO2 एंड H2O। क्लियर? ये मेन 3 कंपोनेंट हैं जो होने चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो उनको प्रूफ किया गया डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी की और उन्होंने इन कंपोनेंट की प्रेजेंस को प्रूफ किया। अब लाइक वी नो कि जब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस चलता है तो एट द एंड CO2 प्लस वाटर बनता है। सॉरी, CO2 प्लस वाटर, आपके CO2 प्लस वाटर को फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट को बनाया जाता है। क्लियर? अगर आप एक इक्वेशन देखेंगे तो ये आपको इक्वेशन यहाँ पे आपको दिखाई देगी। CO2 plus H2O in the presence of sunlight they form this component and that is represented as a carbohydrate जो कि ग्लूकोज होता है। क्लियर? एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट। क्लियर? हमने जब लिविंग सिस्टम पढ़ा था तो हमने वहाँ पढ़ा था कि पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि उनके अंदर बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है। पढ़ा था हमने। तो एग्जैक्टली क्या करते हैं कि कार्लोस वॉन नील ने जो बेसिकली डिस्क्राइब किया था, ये हमने पढ़ा है ये टॉपिक। ठीक है? तो पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्या करते हैं, दे परफॉर्म सेम थिंग आल्सो, वो भी यही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ साइनोबैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा, ग्रीन एल्गी की बात नहीं कर रहा, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ। सो उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उन्होंने क्या, देखिए, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया दे आल्सो परफॉर्म द सेम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो कि प्लांट्स में होता है। ठीक है? प्लांट्स में बेसिकली क्लोरोफिल A, B, ओके, एंड डिफरेंट अदर कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, पिगमेंट्स होते हैं। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में भी सेम प्रोसेस होता है, बट वहाँ पे बैक्टीरियोक्लोरोफिल A, B, C, D, E ये डिफरेंट बैक्टीरियोक्लोरोफिल होते हैं। क्लियर? अब उनके फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, ये बेसिकली कार्लोस वॉन लीन ने इसको प्रूफ किया था। उन्होंने क्या बताया, और ये हमने पढ़ा भी है। ओके, हमने पढ़ा भी है। ओके, जनरली ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब इनमें इक्वेशन में फर्क क्या मिलेगा, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया एंड द प्लांट्स, ओके, बोथ दे यूज ए CO2, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। ठीक है? एज ए इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कार्बन को यूज करते हैं। अगर जो फर्क आता है, द मेनली डिफरेंस कम इन द साइड ऑफ द H2।
ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे वो प्लांट यूज करते हैं H2O, बल्कि यहाँ पे यूज करते हैं जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो ऑब्वियसली बात है सल्फर का कंपोनेंट वो यूज करेंगे, और जब वो सल्फर का कंपोनेंट यूज करेंगे सो एज ए प्रोडक्ट वो सल्फर रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। समझ में आ गया? प्लांट्स बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, बट पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, सल्फर रिलीज करते हैं। ठीक है। हाँ, प्लांट पिगमेंट की जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट तो उनको भी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप हमको पता है, एंड फोटोसिंथेसिस में याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ना, वो CO2 से नहीं होता है, H2O से होता है। ओके, ये माइंड में हमेशा रखिएगा। क्या रखिएगा? ऑक्सीजन जो बेसिकली रिलीज होता है वो H2O से होता है। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो H2O है, लेकिन अब पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट H2O नहीं है, H2S है। क्लियर हो गया? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे कि जो प्लांट जिस फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं वो होता है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, व्हाइल यो पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिस फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? यहाँ पे वही लाइन मैंने लिखी हुई है, एंड देखिए जो H2O से मैंने बताया ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो H2 एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एक चीज याद रखिएगा, इस चीज को परफॉर्म करने, इस चीज को बेसिकली कि H2O से O2 रिलीज होता है, इसके लिए बेसिकली रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक यूज की गई थी, जहां पे हम H2O को मार्क कर देते हैं। ठीक है, हमने रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक पढ़ी होगी शायद आपने। तो उसमें क्या होता है कि हम जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम होते हैं, उनको मार्क कर देते हैं, और जब आउटपुट साइड में उसी मार्क का कंपोनेंट रिलीज होता है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कंपोनेंट उस कंपाउंड से रिलीज हुआ है। सो सेम वे, the same way that we same way different components and different cycles को हम जान पाते हैं। जैसे कि अब क्रैब साइकिल में जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सोसैलिसिलिक एसिड से आपका अल्फा ग्लूटारिक एसिड बना, फिर सक्सेनाइल कोएंजाइम बना, फिर सक्सेनिक एसिड बना, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड बना, मैलिक एसिड बना। कैसे पता चलता है? किसी ने देखा है मैलिक एसिड बनते हुए, फ्यूमेरिक एसिड बनते हुए? किसी देखा है? नहीं। इसके लिए रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक यूज की जाती है कि इनको मार्क कर देते हैं, उस कंपोनेंट को, उस कंपाउंड को मार्क कर देते हैं, देन फिर हम देखते हैं कि उससे जो रिलीज प्रोडक्ट है वो क्या बन रहे हैं। ठीक है, सो ये हम पढ़ेंगे और डिटेल में। रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इवन जैसे कि बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी करने के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। ओके, अगर आप कहेंगे तो मैं इस टेक्निक को डिटेल में पढ़ा दूंगा। क्लियर? सो फिलहाल हम अपना लेक्चर हमारा यहीं पे ओवर होता है। क्लियर? हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अबाउट द पिगमेंट, कि पिगमेंट्स क्या होते हैं, पिगमेंट्स में एग्जैक्टली प्रोसेसिंग कैसे होती है, हर एक टॉपिक को हम हर डिटेल में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप अपने घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। धन्यवाद।